बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज स्यूडो फोर्स। एनएलएम का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो स्यूडो, पहले ये पढ़ेंगे कि स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट क्यों आया। दिस एक्चुअली पी इज साइलेंट हियर, सो दिस इज कॉल्ड स्यूडो। सो समटाइम्स दिस स्यूडो फोर्स इज समटाइम्स आल्सो कॉल्ड फेक फोर्स, or sometimes you can call it as imaginary force. Imaginary force. So pseudo force का concept आया क्यों? The Newton's most important discovery जो थी, that's Newton's second law of motion, on which the whole mechanics is based, that is F is equal to ma. F is equal to ma. जब लोगों ने इस लॉ को अच्छे से पढ़ा तो इस लॉ में कुछ प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो गई। वो प्रॉब्लम्स क्या थी? दिस न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इट स्टार्ट्स डिपेंडिंग अपॉन द रेफरेंस फ्रेम, और इन अदर वर्ड्स आई वुड से इट स्टार्ट्स डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जर्वर, कि ऑब्जर्वर है कहां पे। इट स्टार्ट्स डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जर्वर, or I would say a reference frame. Frame मतलब where the object, where the observer is staying, where the observer is staying. क्या ये observer की acceleration zero है? मतलब it depends upon the frame. और frame मतलब ये observer है कहाँ पे? इसकी acceleration क्या zero है? क्या इसकी acceleration कभी non zero भी हो सकती है? अगर इसकी acceleration zero है, और वो acceleration कब zero होगी? When the object is, when the observer is at rest, or when he is moving with a constant, when he is moving with a constant velocity. Or when the acceleration of the observer is zero, then ऐसा पाया गया Newton's laws of motion are valid. Then NLM, Newton's laws of motion are valid. And then the frame is called, the reference frame is called inertial frame. Inertial frame of reference. Inertial frame of reference मतलब where the Newton's laws of motion are valid, especially Newton's second law of motion. और कभी-कभी अगर observer की acceleration non-zero होगी, और non-zero कब है? When the observer is moving with a different velocity. When observer is moving with different velocity, तब उसकी कुछ non-acceleration होगी। अगर उसकी acceleration हुई, तब देखा गया the Newton's laws of motion are not valid. And then that frame is called a non-inertial frame of reference. And that frame is called a non-inertial frame of reference. For example, आपको एक example दे दूं, और ऐसा देखा गया कि where the observer's acceleration is non-zero, that Newton's laws of motion are not valid, and that frame is called a non-inertial frame of reference. अब for example, इसमें एक example दे दूं, एक अच्छी सी example. For example, एक lift है, एक लिफ्ट है जो लिफ्ट ऊपर जा रहा था विथ एन एक्सेलरेशन a, और इस लिफ्ट में एक मास है दैट इज हैंगिंग विथ इट सीलिंग, मास m विच इज हैंगिंग विथ इट सीलिंग, और ये एक ऑब्जर्वर है, एक पर्सन है जो इसको देख रहा है फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द ग्राउंड। अगर एक ऑब्जर्वर इसको देख रहा है फ्रॉम द ग्राउंड, तो वो ऑब्जर्वर क्या पा रहा है कि ये लिफ्ट ऊपर जा रहा है विथ एन एक्सेलरेशन a, तो ये मास भी ऊपर जा रहा है विथ एन एक्सेलरेशन a, तब वो क्या पा रहा है? सो उसने देखा है, उसने पढ़ा है कि F is equal to ma, the net force acting on an object or acting on some body, it's equal to ma, the mass and acceleration. अगर मैं इसका FBD बना लूं, FBD free body diagram which represents all the force which are acting on the body, अगर मैं इसका free body diagram बना लूं, तो इस मास पे क्या लग रहा है? पहली मास एक फोर्स लग रहा है नीचे की ओर, दैट इज mg, ऊपर की एक फोर्स लग रहा है दैट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग। सो नेट फोर्स क्या है? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, क्या इसकी कुछ एक्सेलरेशन है? ऑब्वियसली इसकी एक्सेलरेशन है, दैट्स a। अगर क्योंकि अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा है विद एक्सेलरेशन a, तो ये मास भी ऊपर जा रहा है विद द सेम एक्सेलरेशन a। सो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट दैट इज t, ऊपर वाला फोर्स ज्यादा होगा नीचे से, तो t minus mg, T is the tension in the string, mg is the weight of the body, it must be equal to m into a according to Newton's second law of motion. F is equal to ma, the net force acting on the body is equal to m into a. So यहां से अगर मैं टेंशन निकालने की कोशिश करूं तो टेंशन आएगा mg plus ma. So ये कौन देख रहा है? ये वो ऑब्जर्वर देख रहा है which is on the ground, जिसकी एक्सेलरेशन क्या थी? जिसकी एक्सेलरेशन 0 थी। अगर मैं इसी लिफ्ट को देखूं, which is moving
upwards with the same acceleration a, और इसमें वही mass है m, which is hanging with its ceiling by some string. मगर इस वक्त ऑब्जर्वर ग्राउंड पे नहीं है, he is sitting inside the lift. और जब ये ऑब्जर्वर इस मास को देख रहा है, तो इसके हिसाब से ये मास रेस्ट पे है, इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं। अगर इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो इसकी एक्सेलरेशन जीरो। मगर क्या इस पे कोई फोर्स लग रहा है? हाँ, ऑब्वियसली लग रहा है। कौन सा? इस पे फोर्स लग रहा है नीचे की ओर, दैट इज वेट mg। क्या ऊपर की ओर भी फोर्स लग रहा है? हाँ, लग रहा है। कौन सा? दैट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग। बट नेट फोर्स तो लग रहा है, मगर एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर, क्योंकि जब वो इस मास को देख रहा था तब इसकी एक्सेलरेशन क्या थी? जीरो। तो इसके हिसाब से रेस्ट पे, तो इसकी एक्सेलरेशन जीरो। तो उसने कहा अगर इसकी एक्सेलरेशन जीरो तो नेट फोर्स मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर T मस्ट बी इक्वल टू उसके अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं, क्योंकि वो उसको अंदर से देख रहा है। अब ये ऑब्जर्वर इस मास को देख रहा है, तो इसके हिसाब से टेंशन आ गया mg प्लस ma, और ये ऑब्जर्वर इसको अंदर से देख रहा है, इसके हिसाब से टेंशन आ गया mg। तो दो डिफरेंट ऑब्जर्वर्स, दोनों के रिगार्डिंग टेंशन इज डिफरेंट, बट टेंशन एक ऐसा फोर्स है विच डज नॉट डिपेंड अपॉन द रेफरेंस फ्रेम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस स्ट्रिंग की जगह यहां पे एक स्प्रिंग बैलेंस लगाता, जो वेट मेजर करता, और उस स्प्रिंग बैलेंस से कहता मुझे इसका वेट बता दो, वो वेट मुझे एग्जैक्ट, और यू नो दैट स्प्रिंग बैलेंस एक्चुअली जो वेट मेजर करता है एक्चुअली इक्वल टू टेंशन, वो टेंशन ही मेजर करती है। अगर मैं उस स्प्रिंग बैलेंस से टेंशन मेजर करता, वो वेट मेजर करता, वो मुझे एक्जैक्टली mg प्लस ma मिलता और mg नहीं मिलता। इट मीन्स दैट इन दो में से कौन गलत है? इट मीन्स दैट दिस पर्सन इज रॉन्ग एंड दिस पर्सन इज राइट। फिर प्रॉब्लम कहां पे है? क्या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यहां पे वैलिड नहीं है? फिर क्या ऑब्जर्वर गलत कैलकुलेट कर रहा है? नहीं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी वैलिड है और ऑब्जर्वर भी ठीक कर रहा है, मगर प्रॉब्लम क्या है? उसको लगाना यहां पे, जब मैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाया, वो मैंने ग्राउंड फ्रेम से लगाया, वेयर द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर वाज जीरो। और यहां पे मैंने जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाया, वो मैंने उस फ्रेम से लगाया जहां पे एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर थी, क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रहा था विद एन एक्सेलरेशन a, इसका मतलब इस ऑब्जर्वर की वही एक्सेलरेशन थी जो लिफ्ट की एक्सेलरेशन थी। इट मींस दैट ही इज अप्लाइंग द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस where the observer has some acceleration. It means that this is a non-inertial frame, and when you are applying the Newton's laws of motion from a frame of reference which is non-inertial, मतलब where we have some acceleration of the frame of reference, then the Newton's laws of motion are not valid. तो वहीं से कौन सा कॉन्सेप्ट आया? pseudo force का कॉन्सेप्ट। तो pseudo force का कॉन्सेप्ट क्यों आया? So that we can apply the Newton's laws of motion, to a non-inertial frame of reference. तो pseudo force का कॉन्सेप्ट यहीं से आया। So pseudo force का कॉन्सेप्ट क्यों आया? So pseudo forces are used to apply Newton's laws of motion to a non-inertial frame of reference. To a non-inertial frame of reference. non-inertial frame of reference. और किसके बराबर होता है? इस pseudo force की जो फॉर्मूला है, that is equal to minus ma. The pseudo force is exactly equal to minus ma. What is this a? This a is the acceleration of the observer, and this m is the mass of the object. A is the acceleration of the observer and m is the mass of the object. And minus क्या represent करता है? Minus represent करता है always apply the pseudo forces. Always apply the pseudo forces opposite to the acceleration of the observer. So it means that whenever you are trying to apply the Newton's laws of motion to an object or to an object where the observer is seeing it from a non-inertial frame of reference,
first apply the pseudo force on the body. First apply the pseudo force on the body. For example, अब यही ऑब्जर्वर जब इस मास को देख रहा था फ्रॉम ए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तब यहाँ पे टेंशन कैलकुलेट करने के लिए पहले अप्लाई कर लो क्या, स्यूडो फोर्स। और स्यूडो फोर्स किसके बराबर होता है, माइनस एम ए। माइनस मतलब इट्स अप्लाइड अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। मतलब पहले ही आपको क्या अप्लाई करना है, अप्लाई द न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। पहले ही क्या अप्लाई कर लो, पहले ही अप्लाई कर लो स्यूडो फोर्सेस। स्यूडो फोर्स इस पे लगाओ। स्यूडो फोर्स किस दिशा में, अगर इसकी दिशा एक्सेलरेशन ऊपर, तो स्यूडो फोर्स किस दिशा में, अपोजिट टू द एक्सेलरेशन, मतलब इट्स इक्वल टू एम ए, नीचे क्यू। क्योंकि ऑब्जर्वर की एक्सेलरेशन ऊपर है तो स्यूडो फोर्स इज इक्वल टू माइनस एम ए, तो नीचे की ओर क्या लगेगा, एम ए। ये खुद ब खुद पहले लगाना है। हमेशा याद रखना, जब भी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लगाना हो इन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो पहले ही अप्लाई कर लो ऑब्जेक्ट पे स्यूडो फोर्सेस, एंड दैट स्यूडो फोर्स इज इक्वल टू एम ए, वेयर एम इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। और हमेशा लगाओ अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर, जैसे यहाँ पे। अब फिर भी ये ऑब्जर्वर इस बॉडी को देख रहा है, फिर भी अकॉर्डिंग टू हिम द बॉडी इज एट रेस्ट, द बॉडी इज एट रेस्ट। मगर अगर इट मीन्स दैट अगर फिर से अभी बॉडी रेस्ट में है, तो नेट फोर्स मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। मतलब ऊपर वाले फोर्स मस्ट बी इक्वल टू नीचे वाले फोर्सेस। मतलब टी मस्ट बी इक्वल टू किसके बराबर, एम जी प्लस एम ए। क्या अब वैलिड है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन? According to this observer, tension is equal to mg plus ma, and according to this observer, tension is equal to mg plus ma. It means that Newton's second law of motion is now valid when we have applied the pseudo forces to a body with respect to an observer which is moving with some acceleration. For example, वहां पे ऐसी एक अच्छी सी एग्जांपल है एक्सियोमा की, जहां पे हम pseudo forces लगाते हैं। एक्सियोमा पेज नंबर, एक्सियोमा पे एक एग्जांपल है, अच्छी सी एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 5.5 एंड पेज नंबर 70। एक अच्छी एग्जांपल है वहां पे। एग्जांपल क्या है कि एक कार है, एग्जैक्टली डिटो सेम है। एक कार है, ये कार आगे जा रही है विथ एन एक्सेलरेशन ए, और इस कार में एक पेंडुलम है ऐसे, जिसका मास m है। अब एग्जांपल क्या है कि जब ये कार आगे जा रही हो, इसमें एक पेंडुलम है और उस पेंडुलम के बॉब का मास m है। अब क्या हुआ कि जब ये कार आगे जा रही थी, तो पेंडुलम कहां जाएगा, पीछे। तो पेंडुलम पीछे आ गया लाइक दिस। अब क्वेश्चन पूछ रहा है find this theta such that this pendulum is, or this bob, or this mass, or this object having mass m, it is now in equilibrium here. Question क्या है? Question is there, find the theta, the angle with the vertical where the mass m is in equilibrium. चलो आप ध्यान से सुनना। अब इसको कैसे कर ले? इसको हम कर सकते हैं फ्रॉम एन इनर्शियल फ्रेम एज वेल एज फ्रॉम ए नॉन इनर्शियल फ्रेम। अभी स्यूडो फोर्स की बात हो रही है, तो लेट्स डू इट फ्रॉम ए नॉन इनर्शियल फ्रेम सो दैट वी कैन अप्लाई द स्यूडो फोर्सेस हियर। फॉर एग्जांपल, अब जब ये कार आगे जा रही थी, एक्सेलरेशन है, तो डेफिनेटली बॉब पीछे आएगा। जब ये बॉब it was hanging from the ceiling like this, अब कार आगे जाए तो ये बॉब पीछे आएगा, so it's making some angle here। अब यही एंगल हमें निकालना है। so let's, जब ये मास पीछे आ गया, ये बॉब यहाँ पे था, अब ये पीछे आ गया क्योंकि कार आगे जा रही थी। अब यहाँ पे हमें एक थीटा निकालना है such that this mass is in equilibrium, मतलब इस पे लगने वाले forces are in equilibrium। अब अगर मैं इसका एफबीडी बना लूं इस बॉब का, चलो इसका एफबीडी यहाँ पे बनाता हूँ। सोल्यूशन देखो इसका, अगर मैं इस बॉब का एफबीडी बना लूं, तो इसका एफबीडी कैसे बनेगा, ध्यान से सुनना। क्या था कि मुझे ये बॉब ऐसे था, पेंडुलम ऐसे था, धीरे धीरे ये ऐसे होगा क्योंकि गाड़ी आगे जा रही है, कार आगे जा रही है, सो दिस इज माय थीटा। अगर मैं इसका एफबीडी बना लूं, तो इसका मास m था, तो इस पे नीचे लगने वाला फोर्स कितना, mg। और ऑब्जर्वर जो है, अब वो ऑब्जर्वर इसको अंदर से देख रहा है।
Observer is sitting inside the car. Observer is sitting inside the car. जब वो observer inside the car है, it means the observer is also moving some acceleration. It means that जिस frame से वो देख रहा है, that is a non-inertial frame of reference. और जब ये non-inertial frame of reference है, तो then you know that कि आपको क्या लगाना है पहले ही pseudo force. और pseudo force किस दिशा में लगाना है? Opposite the acceleration of the observer. मतलब observer की acceleration आगे होगी, तो इस पे pseudo force पीछे की ओर को लगाना है. और कितना? That is equal to m into a. m into a. ये m into a क्या है? This is the pseudo force. पहले ये लगाना है. अच्छा नीचे क्या लगेगा? Definitely इसका weight that is equal to mg. और स्ट्रिंग में क्या कौन सा फोर्स होगा? That is tension. That is tension. तो कितने फोर्स इस पे लग रहे हैं? एक लग रहा है नीचे, इसका FBD है. What is FBD? FBD is free body diagram, which is the representation of all the forces which are acting on the body. अब इसमें कितने फोर्स लग रहे हैं? तीन फोर्स. नीचे की ओर mg, पीछे की ओर ma, और फोर्स इन द स्ट्रिंग दैट्स टेंशन. दैट इज टेंशन. अब ध्यान से सुनना. अब अगर ये टेंशन है, तो इस टेंशन अगर ये थीटा, तो ये भी कितना? थीटा. क्यों? ऑल्टरनेट एंगल्स. अगर ये टेंशन T है, so let's resolve this tension T into its two components. One component will be along here, और जहां से थीटा होता है वहां से कौन सा कंपोनेंट? कॉस वाला. तो यहां से होगा T cos थीटा, और यहां से कौन सा कंपोनेंट? T sin वाला. किसको रिजॉल्व किया? T टेंशन को into its two component rectangular components. One is T cos theta, other is T sin theta. मगर फिर भी जब ये ऑब्जर्वर इसको देख रहा था, तो इसके हिसाब से ये तो रेस्ट पे था, ना आगे जा रहा था ना पीछे जा रहा था. इट मीन्स दैट इज अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है. इट मीन्स व्हेन इट्स एट रेस्ट, तो इस पे सारे लगने वाले फोर्सेस क्या होंगे? दे विल बी इन इक्विलिब्रियम. मतलब जब मैंने इस टेंशन को तोड़ा into two rectangular components, one component is T cos theta, other component is T sin theta, और according to this observer जो कार में ही है, जो non inertial observer है और non inertial frame में इसको देख रहा है, तो according to that observer these forces must be in equilibrium. मतलब this ma must be equal to T sin theta and this T cos theta must be equal to mg, because उसके regarding ये object क्या है? At rest. Therefore, I would say this T sin theta किसको बैलेंस करेगा? It will balance ma. और ये T cos theta किसको बैलेंस करेगा? It will balance T cos theta will balance mg. इसके वेट सही किन गलत? क्या कोई और फोर्स लग रहा है? नहीं, क्योंकि हमने इसी टेंशन को तोड़ा into T cos theta and into T sin theta. इस इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट मानता हूं, इस इक्वेशन को इक्वेशन सेकंड मानता हूं. मुझे क्या चाहिए? मुझे थीटा चाहिए. While the body is in equilibrium. तो कैसे थीटा निकालूं? Now divide first by second. Divide equation first by equation second. तो मुझे क्या मिलेगा? तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड कर लो, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड कर लो. चलो करते हैं. तो क्या आएगा? तो ये आएगा T sin थीटा डिवाइडेड बाई T cos थीटा इज इक्वल किसके बराबर? इट विल बी इक्वल टू ma डिवाइडेड बाय m इंटू g. तो m ने m को मार दिया, सही. t ने t को मार दिया, सही. तो क्या बचा? बचा sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, एंड दैट यू नो दैट इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा. तो tan ऑफ थीटा किसके बराबर? दैट इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय g. तो मुझे थीटा चाहिए, तो थीटा किसके बराबर? तो थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स a डिवाइडेड बाय g. दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट थीटा. So we have calculated theta from a non-inertial frame of reference. और याद रखना, जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हो from a non-inertial frame of reference, तो पहले ही अप्लाई कर लो ऑब्जेक्ट पे क्या? pseudo force. तो pseudo force किसके बराबर होता है? That's equal to minus m into a. माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन. That you have to apply the pseudo force opposite to the direction of the acceleration of the observer. और m is the mass of the object and a is the acceleration of the observer.